He was undoubtedly one of Indian hockey's biggest stars. The highest scorer in the 1997 Junior World Cup in Milton Keynes, he rose to superstar status. The senior ranks were his for the taking. But when things start to go wrong, it's a domino effect. Yesterday, after years of not being in the limelight, came the tragic news that Rajiv Mishra had been found dead in his home in Benares. His death is being called mysterious. At Milton Keynes, he was the Junior World Cup's highest scorer with 9 goals. Curly long hair tied in a bandana, he caught the imagination of a nation starved for hockey success. Even though India lost the World Cup final to Australia, Rajiv Mishra was the next big thing. Destiny veered him into a different direction. An injury during training saw him undergo surgery, and then a hurried return to the turf worsened the knee. The then Indian Hockey Federation didn't offer much support. Mishra fell down a dark abyss. One thing led to another, depression set in. Friends said he became a loner and took to drinks. His weight ballooned. In such cases, self-esteem dives along with the career. He had a family, a job, but there must have been moments, many in fact, when he would have yearned for the roar of the fans, that singular excitement of scoring a goal, the team winning, dreams coming true. There is no doubt that he had God-given skills, movements as smooth as silk, a vision that enabled him to understand the pace of the ball better than most. This tragedy could have been averted. That helping hand from the management, the player community might have calmed him. Maybe steering him towards coaching would have given him a meaning in what he felt was darkness closing around him. Welcome to NNI Sports for a very special show on remembering Rajiv Mishra. He is a person who was a very prominent junior India hockey player. He could have done much more, but we lost him prematurely at the age of 46. But the story is much more than that. The story is about a game, a sport which is revered in India and in the rest of the world too. Rajiv Mishra could have done much more. Like I'm repeatedly saying, he himself wanted to be recognized as one of the best forwards in the world, but that never happened. It is a story also of regret, a bit of loss. It is a story that if he had been handled better, he could have done much more. But the show is not about pointing fingers at anyone. It is not about a blame game. It is about how hockey players or players from any other format, just leave cricket aside, which is well looked after, can be cared for in the long run. What happens when a star player loses his position or her position? There is loss of fame. There is a feeling of depression. They find it very difficult to adjust to normal life. It is that story. So there are a lot of learnings from here. And I'm joined by an excellent panel, and it has Mr. Dileep Tirkey, who obviously needs no introduction, but I shall go through the details. Hockey India president, vice captain, 97 of the Junior World Cup team. He played alongside Rajiv Mishra. Then Mr. Rajesh Chauhan, midfielder, silver medalist, 97 Junior World Cup. And he also played alongside Rajesh Chauhan. I have Sandeep Mishra, sports editor, NNI Sports. He was one of the main people who interviewed Rajiv Mishra in somewhat better circumstances in the year 2003. So these three gentlemen will guide us through the show. My basic task is to basically talk to all of you. Very warm welcome to all of you. दिलीप भाई, आपसे शुरुआत करते हैं. आप राजीव मिश्रा के साथ खेल चुके हैं, आपके अपने मेमोरीज होंगे. सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे उस जूनियर वर्ल्ड कप के दौरान क्या हुआ, आपके अपने एक्सपीरियंसेस क्या थे राजीव के साथ खेलते हुए? थोड़ी ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है. मैं राजेश चौहान जी के पास जाना चाहता हूँ. राजेश जी, आप खेल चुके हैं राजीव मिश्रा के साथ, आप खुद उनके साथ आपने काफी वक्त गुजारा है. क्या यादें हैं आपकी, कैसे आप उनको याद करना चाहेंगे? नमस्कार जी. सबसे पहले तो ये जो दुखद दिन हमें देखने को मिला है, ये सबसे दुखद दिन है और ऐसा किसी के साथ भी ना हो.
और राजीव मिश्रा से जब पहली बार मैं मिला तो हम 1992-93 में एयर इंडिया हॉकी एकेडमी में हम दोनों का सिलेक्शन हुआ था, और मैं सेंटर फॉरवर्ड खेलता था और राजीव मिश्रा लेफ्ट हाफ खेलता था उस टाइम पे। और उसके बाद जैसे जैसे जूनियर वर्ल्ड कप नजदीक आया तो मैं लेफ्ट इन और मिडफील्ड में खेलने लग गया, और राजीव मिश्रा लेफ्ट हाफ से सेंटर फॉरवर्ड में खेलने लगे। और उन्होंने थोड़े से टाइम में अपने आप को इतना अच्छे तरीके से उस फॉरवर्ड लाइन में सेट किया कि वो जूनियर वर्ल्ड कप में सितारा बनकर उभरा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा और देश की हॉकी का ये रहा कि कुछ दिन बाद ही उनको नी में इंजरी हो गई, और उसके बाद उनका जो कैरियर था वो छोटा हुआ। तो ये दुखद दिन था पहले भी और अब भी। राजेश जी, जब उनके घुटने पे वो चोट लगी थी, और इसके बारे में काफी कुछ कहा गया है, और ये भी दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स आए हैं कि एक तो ये था कि जिस डॉक्टर ने उनकी जांच की थी, सर्जरी की थी, उन्होंने ये शायद कहा था कि इतनी जल्दी वापस मत लौटो, लेकिन राजीव मिश्रा के अंदर का कुछ हुआ होगा स्पिरिट, तो वो शायद जल्दी लौटे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था। आपके पास कोई ऐसी कोई सूचना होगी जिससे ये पता चले कि हुआ क्या था घुटना चोट लगने के बाद? एक्चुअली चोट लगने के बाद जब डॉक्टर से परामर्श हुआ तो डॉक्टर अपनी रिपोर्ट देते हैं, और जो खिलाड़ी होता है वो मन से और उनके शरीर में क्या चल रहा है खिलाड़ी को ज्यादा पता होता है। तो राजीव ने ये फैसला किया कि मेरे को कम बैक करना चाहिए, और कम बैक किया भी। 1998 का जो सीनियर वर्ल्ड कप था उसमें हम सभी टीम में थे, राजीव का भी सिलेक्शन उसमें हुआ था। लेकिन आखिर में जब हम हॉलैंड में गए सीनियर वर्ल्ड कप खेलने, तो वहां पे फाइनल रिपोर्ट डॉक्टर की थी कि अब आगे आपसे नहीं खेला जाएगा, और ये पूरा टूर्नामेंट के बीच में कुछ हो गया तो फिर देश को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबने मिलकर ये डिसीजन लिया कि आप अभी रेस्ट करें और दोबारा फिर कम बैक करें। जी संदीप, मैं आपके पास आना चाहता हूं, एंड बेसिकली व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज दैट you were possibly one of the last journalists who interviewed Rajiv Mishra way back in the year 2003 in Varanasi, and the very strange, or rather interesting, title of that show was Hisab Khel Ka, as if there is a hisab to be given even in sport. How would you recall that interview, and you still feel so strongly about Rajiv? My first memories go back to Milton Keynes, where I always work on superstitions when I cover sport, and I very clearly remember that मैं जाके ना जिस तरफ ऑपोजिशन की टीम होती थी तो उस तरफ जाके मैं खड़ा हो जाता था फेंस के ऊपर, और वहां से मैं मैच देखता था। एंड वो लक ही मेरा वैसे था कि मैंने जितने भी गोल्स देखे राजीव के, दे वर ऑलवेज व्हाइल आई वाज स्टैंडिंग वर्चुअली नेक्स्ट टू द स्ट्राइकिंग सर्कल इन टर्म्स ऑफ द फेंसिंग। वहां पर भी कई बार काफी बातें हुई थी, एक आध छोटे छोटे इंटरव्यूज जो हम मैचेस के बाद करते हैं, बट उसके अंदर एक वो था, ही वाज नॉट वन ऑफ दोज गाइज हु वाज इंटरेस्टेड टू मच इन गिविंग इंटरव्यूज। उसका हर वक्त रहता था कि मेरे से लंबे इंटरव्यूज मत कीजिए, मुझे एक्स्ट्रा मैच खिला लीजिए, मैं बहुत खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मुझे बोलना क्या होता है, मुझे सिर्फ खेलना आता है। सो the sum of what you probably get back is always that his passion to constantly keep playing and playing is probably what made him a big star at the Junior World Cup. And I think this particular passion that we talk about, कि मुझे वहां तक पहुंचना है, and he always said कि मुझे बहुत बड़ा प्लेयर बनना है, मुझे बहुत बड़ा प्लेयर बनना है। He always had this phrase, मुझे कुछ करना है, मुझे उस वहां पहुंचना जहां कोई पहुंचा नहीं है। आई थिंक प्रोबेबली वो जो हम इंजरी की बात कर रहे थे अभी, व्हेन यू वर जस्ट डिस्कसिंग इट, कि क्या वो बहुत जल्दी ही एस्ट्रोटर्फ पे वापस आ गया, क्या ही वेंट अगेंस्ट द डॉक्टर्स एडवाइस। समटाइम्स यू डू फील दैट यस मे बी, बट एट द सेम टाइम आई थिंक रेलवेज के लिए वो मैच खेल रहा था, उसको आई थिंक थोड़ा बहुत वो प्रेशर था कि मैं रेलवेज के लिए शिवाजी स्टेडियम पे खेलूं। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट पर्टिकुलर एस्ट्रोटर्फ, इट वाज कंप्लीटली worn out. And when an AstroTurf gets completely worn out, it almost becomes like an ice rink,
it's extremely slippery. You don't know how you're going to put your footing. Everything becomes something that you keep guarded against your particular body weight as a center forward. And I think us match mein his knee again went, and the knee was raw. He had just come back from a surgery, from that operation, and I think that big mistake probably took his complete career away. But yes, after that, I think it's up for discussion how players need to understand what they're going through. And I still feel that probably somewhere he kind of put himself down in so many ways that मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया. And today what we see is probably just a result of all of that thing that went through his mind. And when we've lost a player, we've lost a good human being. We've lost somebody who could have given much more than just playing to Indian hockey. राजेश जी, ये कहा जाता है राजीव मिश्रा के बारे में, हालांकि मैंने शुरू में भी कहा था कि इस शो का वैसे मकसद नहीं है कि किसी पे उंगली उठाएं, लेकिन कई और हॉकी जो प्लेयर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो राजीव मिश्रा के दोस्तों की कैटेगरी में आते थे, उनका कहना था कि अगर उस वक्त इंडियन हॉकी फेडरेशन ने उनकी मदद की होती, थोड़ा उनका सहारा दिया होता, तो वो उनकी ये हालत नहीं होती, उनका करियर शायद एक लंबे अरसे तक चल सकता था. आपकी अपनी सोच क्या है? देखिए, वैसे तो कुछ हैपनिंग हो जाती है, उसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी मेरा अपना सोचना है कि जो भी प्लेयर किसी के साथ ऐसी इंजरी होती है या कोई भी ऐसा कारण होता है कि वो खेल से दूर होता है, तो हमारे सिस्टम को उस खिलाड़ी को खेल से दूर नहीं जाने देना चाहिए. और अगर हम उनका सही तरीके से यूज कर पाते, जैसे इनसे पहले मोहम्मद शाहिद जी भी 56 साल की उम्र में हमारे से दूर हो गए, तो उनका भी यूज अगर हम हॉकी के लिए, खेल के लिए अगर हम करते, तो आज भी शायद हम उनको देख रहे होते और उन जैसे प्लेयर और ग्राउंड पे आते, खेलते हुए देख रहे होते. तो मेरा मानना है कि आगे ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि ऐसे प्लेयर जो खेल से दूर हो जाते हैं, उनको हमें खेल से दूर नहीं जाने देना चाहिए और उनकी सेवाएं खेल में लेनी चाहिए, जिससे उनका भी भला हो और देश के खेल का भी भला हो. राजीव जी, जैसे क्रिकेट में एक सिस्टम बन गया है कि एक प्लेयर्स का एसोसिएशन है, उसके बाद उन प्लेयर्स को बीसीसीआई ने पेंशन अब अवार्ड कर दिया है. ये जाहिर सी बात है कि बीसीसीआई के पास पैसा बहुत है और हॉकी शायद उतनी उस लेवल पे नहीं है जो एक रियलिटी है. लेकिन क्या करना चाहिए ताकि प्लेयर्स को कुछ सपोर्ट मिले? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब किसी प्लेयर को कोई झटका लगता है या वो खेल नहीं पाता है, तो उसकी जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ सकती है. सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है. हालांकि राजीव मिश्रा के पास इंडियन रेलवेज की एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को अकेले महसूस किया. उन्होंने अपने आप को, शायद ये एक रिग्रेट उनके दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि मैं क्या बन सकता था और मैं नहीं बन पाया. आपके हिसाब से क्या किया जा सकता है ताकि प्लेयर्स को ये ना लगे कि वो अकेले हो? जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि फेडरेशन, एसोसिएशन और गवर्नमेंट सबको मिलके, जैसे हमें नौकरी मिल जाती है रेलवे में, राजीव मिश्रा रेलवे में थे, मैं एयर इंडिया में हूँ, कोई पंजाब पुलिस में है, कोई सिंध बैंक में है, तो हमें खेल से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें खिलाड़ी का काम है, किसी स्कूल में खिलाड़ी पैदा करे, किसी कॉलेज में खिलाड़ी पैदा करे, किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो खेल के खिलाड़ी पैदा करे. जबकि हमें काम दे दिया जाता है दूसरा कि हम ऑफिस वर्क करें, जो हमारी जगह दूसरा भी कोई काम कर सकता है. और जो काम हम कर सकते हैं, 30-35 साल से हम जो काम सीखा हुआ है, जो खेला हुआ है, जो हमें पता है, उस खेल के लिए अगर हम हमारा यूज किया जाएगा तो बेहतर परिणाम निकल सकते हैं. और जैसा हमारे ही देश में ऐसा सिस्टम क्रिकेट ने बनाया है, दिखाया है दुनिया को कि हमारे यहाँ भी ऐसा सिस्टम हो सकता है, तो हमें जरूरत है अपने सिस्टम को सुधारने की, हॉकी के सिस्टम को सुधारने की, अपने पुराने जो प्लेयर हैं उनको यूनाइट होने की, कि हम अलग अलग नहीं, देश के लिए और खेल के लिए हम कुछ करें. हमारा भी फर्ज है कि हम उन खेल के लिए और खिलाड़ियों के लिए कुछ करें, तभी जाके अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे.
Mr. Dilip Tirki is back with us. Dilip bhai, I hope you can hear me. मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब राजीव मिश्रा का नाम आता है तो उसी टीम में उस वक्त जूनियर वर्ल्ड कप के समय 97 में आप वाइस कैप्टन थे। क्या यादें हैं आपकी राजीव के बारे में? सबसे पहले राजीव मिश्रा हमारे बीच नहीं रहे, इस बात का काफी दुख है। और मेरा वॉइस आप क्लियरली सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जब अचानक मैं भी उनके बारे में सुना, मुझे भी काफी दुख हुआ, क्योंकि राजीव मिश्रा का नाम लेते ही एक दिमाग में बैठ जाता है। उस टाइम हम साथ में रहा करते थे, कई सारे मैचेस हम साथ में खेले हुए हैं, और स्पेशली जब जूनियर वर्ल्ड कप 97 मिल्टन की बात करें तो राजीव मिश्रा कैसे भूल सकते हैं। और हम सब जानते हैं उस मैच के बाद राजीव मिश्रा छा गए थे। ऐसा लगा वर्ल्ड हॉकी को एक नया स्टार मिल गया, सुपरस्टार मिल जाएगा, ऐसा चर्चा हो रही थी। और जहां तक मुझे मेरे साथ उसका एक्सपीरियंस मैं कहूँगा, हम एक डेढ़ साल रहे प्रैक्टिस के साथ में, जूनियर वर्ल्ड कप प्रिपरेशन रहा। उसके साथ साथ मेरे ख्याल से इंडो पाक टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए वर्ल्ड कप से पहले मेरे ख्याल से प्रैक्टिस हम साथ कर रहे थे पटियाला में। और जब प्रैक्टिस के दौरान हम सब ने देखा कि मेरे ख्याल से गोलकीपर एबी सुबह के साथ टकराया और गिरे, और जस्ट थोड़ा सा हम लोग सोचे कि थोड़ा नी इंजरी है, उसके बाद रेस्ट में चलेगी। जब रेस्ट में चलेगी हमें बाद में मालूम नहीं कि वो थोड़ा सा जो गिरा वो इतना बड़ा दुखद हो जाएगा, इतना करियर बर्बाद कर देगी, ये हमें पता नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि राजीव मिश्रा का उनका जो बॉल कंट्रोल के साथ जो स्पीड था, जो अटैकिंग हॉकी खेला करते थे, मेरे ख्याल से खिलाड़ी के रूप में बहुत अच्छा खिलाड़ी थे, अपने लेवल में एक्सीलेंट खिलाड़ी थे। मैं जितना तारीफ करूं उतना कम रहेगा, क्योंकि मैं देखा हूं, खुद हम साथ में खेले हैं। और हमेशा देखिए अंडर 21 टीम हमेशा एक फॉरेन कंट्री के साथ खेलता तो एक डर रहता है। हम कभी परफॉर्म करने जाते हैं तो एक डर रहता है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है। तो मेरे ख्याल से उस दौरान हमारे फ्रंट लाइन इतना स्ट्रांग थी। राजेश चौहान भी साथ में है, इस बात को मानते होंगे। और भी हमारे फॉरवर्ड्स थे, वाइस रावत की बात करें, राजेश चौहान की बात करें, वीरेंद्र की बात करें, साथ में राजीव मिश्रा का उसका परफॉर्मेंस, उसका जो डेडिकेशन, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग ही था। और पहला टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से 9 गोल दागना बहुत बड़ी बात थी, और वो उसने करके दिखाया था जी। आज हमारे बीच में नहीं है। सुनते हुए मुझे काफी दुख लग रहा है, लेकिन इंजरी ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया, इस बात का भी हमें दुख है। दिलीप भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, और इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे पता है, मैं खुद भुवनेश्वर आके आपसे मिला था, और जो इतना बढ़िया वहाँ पे फैसिलिटीज नवीन पटनायक जी के थ्रू वहाँ बना है। राउरकेला में भी आप लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है, यंग प्लेयर्स को आप बुला रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये राजीव मिश्रा वाला जो इंसिडेंट है, ये काफी चर्चित इसलिए भी हो रहा है, ट्रेंडिंग भी हो रहा है, क्योंकि कई जो यंग खिलाड़ी हैं वो जो शायद बहुत ढंग से राजीव मिश्रा को नहीं जानते, वो थोड़ा भयभीत भी हुए हैं। उनको लगता है कि क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप हॉकी इंडिया की तरफ से, अपनी तरफ से, क्योंकि आप खुद इतने बड़े खिलाड़ी हैं और एक मिसाल हैं, कि जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं उनका ठीक से देखभाल हो? बीस 25 साल पहले मेरे ख्याल से रिहेब का जो प्रोसेस था कुछ और था। उस टाइम खिलाड़ी इंजरी होते थे, और मुझे कहीं ना कहीं राजीव के केस में और कई सारे केस में ऐसा लगता है कि हम सब उसका प्रॉपर केयर नहीं कर पाए थे, और ठीक से इंजरी को हम एनालाइज कर नहीं पाए,
इंजरी का जो रिहैब को हम प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाए, कहीं और कुछ और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट के फाइनली बोलिए, एक पॉइंट के आगे, जैसे मैंने अभी राजेश भाई से पूछा था, उन्होंने अच्छा जवाब दिया कि जैसे बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को पेंशन देती है, अभी इतना बहुत तगड़ा सपोर्ट स्टाफ है जिसमें फिजियो है, साइकोलॉजिस्ट हैं, पूरी एक टीम रहती है, साइंस मेडिसिन है, खासतौर से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जिस हिसाब से रिहेबिलिटेशन की बातें, मतलब वहाँ काम चल रहा है एनसीए में। आपने बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त नहीं था हॉकी में, अब की क्या स्थिति है, थोड़ा उस पर रोशनी डालिए, और क्या और आप चाहेंगे कि हो? आज कोई भी खिलाड़ी इंजरी होता है और हॉकी इंडिया और साई मिलके उसको रिहेब में भेज देते हैं। उसके साथ डॉक्टर भी वहाँ पे देखभाल में रहते हैं, फिजियो भी उनके साथ बातें करके उनके साथ रेगुलर टच में रह के रिहेब कैसे प्रॉपर हो पाएगा उसके ऊपर काम किया जाता है। और फ्यूचर में भी मैं इतना कहना चाहूँगा, जो प्लेयर कैंप में हो या हमारे स्टार हो, कोई भी प्लेयर यदि ऐसा इंजरी होता है तो डेफिनेटली हॉकी इंडिया और गवर्नमेंट के साथ बात करके, साई के साथ बात करके, तो जो बेटर जैसे जल्द से जल्द कम बैक कर पाएगा और उसके लिए प्रयास जारी रहेगा। और आज तो काफी हमारे मेडिकल साइंस का भी एडवांस हो गया है और कई सारे प्लेयर्स इंजरी होने से तुरंत उसे केयर लिया जाता है और कोशिश यही रहता है कि प्लेयर कैसे दोबारा कम बैक करके अपना पुराना फॉर्म में वापस आ जाए। Sandeep, coming to you, after covering hockey for so many years, it's almost like you're the conscience keeper of hockey. You've written books, you have written articles, you have your own website, and you are very well known in the hockey fraternity as someone who is not just a covering journalist, but someone who feels for the sport. My point that I'm coming to is that we've all watched that 2003 interview with Rajiv Mishra in Varanasi, where you were there. And you've spoken a lot about it. So over and above the pathos, the depression, the feeling of loss, what is the kind of message that you yourself would want to send out to those young chaps who are dying to be on the hockey field? Will they be really cared for? I think so. I think, to start with, comparing hockey or any other Olympic sport to cricket probably is slightly wrong here. In a way, the reason being that the funds are very different. The way they are allocated is different. The way Olympic sport is governed is different. I'm not saying that it should not be like cricket, but at the same time, I think what happened during Rajiv's time and what we are seeing now, right from the sub-junior level to college, university, and the way Dilip has been going around trying to put a structure together, I think whatever we see, probably Rajiv Mishra's in a way suffering, whether it was mentally where he couldn't come to terms with what he wanted to do and what he couldn't, and then later on the way he drifted away from the community, the way he drifted away and went into a very silent zone, where he all he had was himself to look after. And I think somewhere there should be a player community, a Hockey India, where they kind of look out for such players who are going through a difficult period, who are trying to come to terms with failure for one, and also coming to terms with an aspect of themselves, that okay, I was supposed to be A+, I could not be A+, but I reached B. Now from B to A+, we can always say, "Theek hai bhai, nahi hua." It's very easy to say this. But I think you really need a particular community that can sit with players, sit with coaches, and tell them कि भाई अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो नहीं पहुँच पाए, और उसके लिए हम आपके लिए बैकअप्स रख रहे हैं. I think Chauhan made a very, very pertinent point. You are a player. You should be involved with the sport itself. I think आज अगर राजीव मिश्रा इस स्पोर्ट के साथ इन्वॉल्व होता, बनारस में, लखनऊ में, यूपी में, कहीं पर भी कोचिंग भी शुरू कर लेता या उसको उस तरह से थोड़ा देखभाल किया जाता, तो ये जो हम राजीव मिश्रा की कहानी के ऊपर बात कर रहे हैं, द वे वी आर रिक्रिएटिंग दैट एंटायर स्टोरी, दैट इट शुड बी अ लेसन फॉर हॉकी इंडिया, फॉर द अदर प्लेयर्स, फॉर सो मेनी कोचेस आउट देयर. आई थिंक आज राजीव मिश्रा
के बारे हम इस तरह से नहीं बात कर रहे होते, हम राजीव मिश्रा के बारे में बात कर रहे होते कि राजीव मिश्रा एक प्लेयर थे, ठीक है, सीनियर टीम में वो जगह बना नहीं पाए बिकॉज ऑफ इंजरी, लेकिन आज वो एक अच्छे कोच भी हैं. आई थिंक दैट इज द पॉइंट वी शुड हैव मेड. जी. Let's listen to some of the sound bites of Rajiv Mishra and try and understand at a point in time in the year 2003 when he gave that interview to Sandeep Mishra. He still had hope. He still had optimism within him, and he had that feeling that given a chance, he could be one of the world's best. Let's listen in once. जब गोल मारे तब मुझे नहीं लग रहा था कि इतना टॉप पे पहुंच गया हूँ जहाँ पहुंचना चाहिए जूनियर लेवल में. और 1-2 दिन बाद जब फ़ोन पे बात हुई कुछ लोगों से, मीडिया वालों से, तब मुझे लगा कि हाँ, मैं जूनियर लेवल में टॉप पे पहुंच गया. उस समय दर्द नहीं हुआ था. जब टकराया तो फिर उठ के फिर खेलने की कोशिश की, और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट ही खेल पाए होंगे. फिर ऐसा लग रहा था कि अब पैर उठा नहीं पा रहा हूँ मैं खुद से. कितने दिनों के बाद लगा कि ये सीरियस प्रॉब्लम है? 2 हफ्ते के बाद. डॉक्टर जोशी का कहना था कि जो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन पड़े हुए थे डॉक्टर राजगोपाल के, वो दिखाने के बाद और उन्होंने जब ऑपरेशन ख़त्म किया उसके बाद मुझसे जो बात हुई, उनका कहना है कि जो लिखा हुआ इस पेपर में उसके अकॉर्डिंग तो उस पैर में कुछ भी नहीं किया गया था. मतलब जो ऑपरेशन पहला था, जो पहला ऑपरेशन हुआ है और जिसमें मतलब राजगोपाल ने जो लिखा है अपने पैर पे कि ये किया गया है, वो सब कुछ भी नहीं किया गया था पैर. राजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हॉकी एक टीम स्पोर्ट है, लेकिन क्रिकेट भी एक टीम स्पोर्ट है, लेकिन उसमें कुछ स्टार्स बनते हैं, कुछ सुपरस्टार्स बनते हैं और उनका नाम ज़्यादा होता है. हॉकी में भी यही ऐसा भी देखा गया है. आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने हॉकी को काफ़ी वक्त दिया है, आप खुद भी एक टॉप खिलाड़ी रह चुके हैं, कि हर प्लेयर कैसे ये एनालाइज करे कि उसमें कितनी काबिलियत है कि वो एक स्टार बन सकता है या नहीं, या एक टॉप लेवल के ऊपर जा सकता है या नहीं. क्या कोई ये कोच का काम है या कोई उसको समझा सकता है, ताकि ये जो जिसे कहते हैं दिमागी मैल एडजस्टमेंट ना हो, कि इंसान सोचे कि मैं बिल्कुल नंबर 10 तक जा सकता हूं जबकि शायद उसकी औकात 5 या 6 की हो. कैसे वो एडजस्ट करेगा? राजेश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन नहीं पाया, दोबारा वो करेंगे प्लीज, सॉरी. जी जी, मैं ये आपसे पूछ रहा था कि आप एक यंग प्लेयर को जैसे टीम स्पोर्ट में कैसे एडवाइस करेंगे कि वो अपना जो दिमागी मापदंड है कैसे रखे. हर एक की एस्पिरेशन होती होगी कि स्केल ऑफ 1 to 10 वो 10वें पायदान तक जाए, लेकिन शायद उसकी उतनी काबिलियत ना हो या उतनी औकात ना हो, उतना टैलेंट ना हो, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए ऐसे सिचुएशंस का? देखिए, जब हम खेलते थे तो जो भी प्लेयर होते हैं, जैसे राजीव ने बताया कि उसका एक ही लक्ष्य था कि मैं टॉप पे कैसे पहुंचूंगा. तो हर प्लेयर का लक्ष्य होता है और लक्ष्य को लेके आगे बढ़ता है और उसी तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं. और अगर हम शुरू से जब खिलाड़ी को जब खेलना स्टार्ट करता है खिलाड़ी, तो उनको सिर्फ ये एडवाइस करें कि वो जो हर दिन जो प्रैक्टिस करते हैं तो वो लिखें भी उस चीज को कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और क्या क्या तरीके वो हो सकते हैं. तो लिखेंगे तो उनको पता रहेगा, और जब वो पढ़ेंगे अपने बारे में और वो क्या करना है, तो वो एक कोच भी बन जाएगा, वो एक रिपोर्टर भी बन जाएगा, और अगर वो चाहेंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं. तो ये सारी चीजें आती हैं जब लिखना, आप क्या सोचते हो, कैसे खेलते हो, तो ये सारी चीजें आपके अंदर तब आती हैं जब आप सोचना स्टार्ट करते हो. तो बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत सारे प्लेयर ऐसे बनते हैं कि कोई सिर्फ सोचते हैं और बोलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लिख लेते हैं और क्या करना है उसके ऊपर स्टिक रहते हैं. जैसे आज हम देख रहे हैं कि भारत में ही एक स्टेट है उड़ीसा. दिलीप तिर्की, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे बहुत सारे प्लेयर हर स्टेट में हो. दिलीप तिर्की की वजह से आज भारतीय हॉकी इस मुकाम पे पहुंचा दी है उड़ीसा ने, और उड़ीसा गवर्नमेंट ने इतना प्यार और सम्मान दिया है, इस देश को इतना प्यार और सम्मान दिया है हॉकी के द्वारा. तो ये उनकी लगन थी और भगवान ने उनको हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया. तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जो उनके मन में है, प्रेस रिपोर्टर्स उनसे पूछें, हर रोज पूछें कि क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, तो आपको वो बता देंगे कि वो इस देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं. जो सिस्टम इन्होंने उड़ीसा में स्टार्ट किया है, मैं चाहता हूँ वही सिस्टम पूरे देश में लागू होगा.
तो वो दिन दूर नहीं कि भारतीय हॉकी फिर से दोबारा अपना चरम पे होगी, और कोई भी खेल अगर इसी तरीके से उसको लागू करेंगे तो हर खेल में हम टॉप पे जा सकते हैं। दिलीप भाई, ये उड़ीसा मॉडल जिसके बारे में काफी आजकल चर्चा हो रही, जैसे राजेश भाई ने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि किस हिसाब से पूरे स्टेट ने मिलके हॉकी को सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया, ये पूरे देश में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? और क्या ये सिर्फ इसमें 2 पॉइंट है जिसमें मैं आना चाहता हूँ, इसमें फंड्स का कितना बड़ा रोल है और पॉलिटिशियंस का सपोर्ट कितना जरूरी है? बिल्कुल दोस्त जी, फंड और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका सपोर्ट काफी रहा है, मैं कहूँगा 200%। 3 एरियाज में फोकस किया गया है। फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड रहा चैंपियनशिप इवेंट ऑर्गेनाइज करना, थर्ड रहा कोचिंग प्रोग्राम। जब तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा हम इवेंट करा नहीं सकते, कोचिंग प्रॉपर हो नहीं सकती। इसलिए गर्व के साथ कहना चाहूंगा मैं कि वर्ल्ड के जो बेस्ट स्टेडियम है वो हमारे उड़ीसा में है। फर्स्ट कलिंगा हॉकी स्टेडियम और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट सीटिंग कैपेसिटी हॉकी स्टेडियम है। इसके साथ साथ आप देख लें 6, 7, 10 सालों के अंदर मेरे ख्याल से काफी इंटरनेशनल मैच ऑर्गेनाइज किया गया। चैंपियन ट्रॉफी से वर्ल्ड हॉकी सीरीज से लेके प्रो हॉकी लीग, वर्ल्ड कप, 2 कंट्रीज लीग, बैक टू बैक वर्ल्ड कप, 2 वेन्यू में वर्ल्ड कप कराना 2 वर्ल्ड कप के बराबर है। और तीसरा मैं कहूँगा कोचिंग प्रोग्राम। अब हम रूरल एरियाज में, मेरे ख्याल से पहला ऐसा उड़ीसा होगा, सुंदरगढ़ हॉकी गढ़ है। सुंदरगढ़ 17 जो ब्लॉक्स हैं, 17 ब्लॉक्स में 16 सिंथेटिक साइंस टर्फ बताया गया है और वहाँ में ग्रास रूट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हर एक ऑलरेडी कोचेस भी उसके लिए अपॉइंट किया गया है। आप जानते होंगे जो डेविड जॉन हैं, जो हॉकी इंडिया के हाई कप में डायरेक्टर थे, ये हॉकी डायरेक्टर होकर हमारे उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ करियापा जो जूनियर इंडियन टीम के कोच थे, एडगर मास्करन, और भी हमारे जो नेशनल लेवल कोचों को हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया गया है ग्रास रूट प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करने के लिए। और हम लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं हमारा ग्रास रूट प्रोग्राम जब स्ट्रांग होगा, बेटर होगा, तो हमारा फ्यूचर हॉकी बेटर हो सकता और बेटर होगा। और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नवीन पटनायक सर जी, उनका सपोर्ट 200%। और साथ में आप जानते होंगे यहाँ पे जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट से प्यार करते हैं, काफी मदद उनसे मिलती है। मैं कहूँगा विशाल जी, पंड्यान जी जो हैं अभी सीएम के पीएस हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और जो बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स आए हैं जो कि हॉकी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए काफी मेहनत की है। और आज तक का मेहनत से आज उड़ीसा मेरे ख्याल से हॉकी कैपिटल, स्पोर्ट्स का कैपिटल बन गया है। इतने नहीं, अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, हॉकी इंडिया में भी, हॉकी इंडिया भी हम लोग लॉन्च किए ग्रास रूट प्रोग्राम, क्योंकि हमें मालूम नहीं, प्रेसिडेंट मुझे भी मालूम नहीं है कि हमारे इंडियन के सब जूनियर बच्चे क्या कर रहे हैं, किस लेवल में, क्या स्टैंडर्ड है, किस स्थिति में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सब जूनियर कंपटीशन नहीं है, मैचेस नहीं है उनके लिए। हम मेरे ख्याल से सालाना एक नेशनल चैंपियनशिप खेलते हैं। अभी कई सालों से हॉकी इंडिया, खेलो इंडिया मैच ऑर्गेनाइज किया गया है। बस 2-3 टूर्नामेंट खेलते हैं, उसके अलावा उनके लिए कंपटीशन नहीं है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सब जूनियर लेवल में ज्यादातर बच्चे मैचेस खेलें। हम उसके लिए जोनल सिस्टम में लेके आए हुए हैं, ईस्ट नॉर्थ साउथ जोन एकेडमिक्स को लेके आए, इसमें साई पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फर्स्ट अंडर 16 की चैंपियनशिप कराने जा रहे हैं, फिर अंडर 19, अंडर 16 का हम कोर ग्रुप बनाने जा रहे हैं, अंडर 19 का कोर ग्रुप बनाने जा रहे हैं हम लोग, ताकि हमें पता लगे कि हमारे जो अच्छे बच्चे हैं, एटलीस्ट जो अच्छे बच्चे हैं कोर ग्रुप में आए और एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। दिलीप भाई, आपने और उसके लिए
जी, आपने काफ़ी डिटेल में बताया कि जूनियर और सब जूनियर लेवल पे हॉकी इंडिया क्या कर रही है। आप खुद इतने वेल नोन प्लेयर हैं, इंडिया के कप्तान आप रह चुके हैं और हॉकी इंडिया के अभी अध्यक्ष हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप खुद राजीव मिश्रा के साथ खेल भी चुके हैं और आपके दोस्त थे एक ज़माने में। राजीव मिश्रा को भूला ना जाए, इसके लिए क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि कोई टूर्नामेंट उनके नाम पर हो, कुछ ऐसी ऐसी उनकी स्मृति में हॉकी इंडिया करे ताकि लोग भूले ना राजीव मिश्रा के नाम के बारे में, कुछ ऐसा हो सकता है? आप अच्छा सजेशन दिए, वेलकम करना चाहूँगा और डेफिनेटली मैं हॉकी इंडिया की भी मैं एक प्रपोजल में लेके आऊँगा और कोशिश यह रहे कि राजीव मिश्रा एक डेफिनेटली उस टाइम तो राजीव मिश्रा यूथ लोगों का आइकॉन था जब हम साथ में खेलते थे और कोशिश डेफिनेटली मैं ये भी हमारे जो हॉकी इंडिया की एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मैं इस बात को लाऊंगा और कोशिश ये रहेगी कि उनके याद में क्या करने से बेटर हो पाएगा। Sandeep, coming to you, we have often seen that when tragedy strikes, as it happened in the case of Rajiv Mishra, a man so talented, but for circumstances, for various reasons, he just fell off the orbit. He went into a very lonely zone, like you yourself explained. You were in touch with him up to a point, then he went into a further cocoon. What can be done to help someone like him and like so many others who go through a very trying time when they are alive? Because I've been reading quite a bit about Indian actors, not the so-called A-listers who are getting the plum jobs, but a lot of very talented people who said that, hey, I am alive, give me some work. And Ashish Vidyarthi, who is a pretty well-known actor, also put out a tweet saying, I am alive, talent producers, मुझे आप काम दीजिए, जब मैं चला जाऊं फिर मत कहिएगा कि अरे वो तो इतना कामयाब आदमी था और अब वो चला गया है. So you understand where I'm coming from. So what can be done? I think Hockey India, as I said, is already doing a very good job in terms of the coaching aspects and everything. And I think all they need to do is probably wire in your sub-junior coaches, junior coaches, coaches like Rajesh Chauhan and so many others who played at a very high level and who are interacting with a lot of sub-juniors and juniors. Because what happens is that this is a messaging system that happens in sport. Now you look at Europe, you look at US, the wiring runs from sub-junior up till seniors. Now, if a player is in distress, if a player is malfunctioning, and it's not just physically, even mentally, those signals should be sent out to the parent body, which here becomes the Hockey India body. Now, if a coach says that I happen to know a former player who's going through a tough time, not financially or physically, but mentally, I think the coach should inform the core center, which is Hockey India, and say कि ये प्लेयर थोड़ा बहुत कठिनाई से निकल रहा है, क्या इसका कुछ हो सकता है, क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं इसकी. I think those are the areas where Dilip has or understands these aspects of hockey much better than any player. You have a Hockey India president who's not only an Olympic captain, but he's played the Dutch league. He understands what is happening in Europe. He understands now what is required here. And for tragedies like Rajiv to not happen further, and that we wire in most of these players. देखो, सीधी सी बात है कि आप हर प्लेयर के ऊपर निगरानी नहीं रख सकते हो, निगाह नहीं रख सकते हो, ये बहुत मुश्किल होता है. लेकिन जहां तक जितने भी कोचेस हैं, सबको मालूम था, या सबको एटलीस्ट बहुत प्लेयर्स को मालूम था कि राजीव का एक पीरियड चल रहा है जो कि ठीक नहीं है. क्या यहाँ उसकी मदद हो सकती थी? हाँ, हो सकती थी. कौन कर सकता था? जस्ट टू से दैट हॉकी इंडिया को ही करना चाहिए, मुझे लगता है गलत है. आई थिंक दिस इज प्रोबेबली अ सिस्टम दैट नीड्स टू बी इवॉल्व. और ये सिस्टम अगर हम लगा लें तो शायद सब जूनियर और जूनियर लेवल में भी ये एक लेसन बन जाएगा कि भाई राजीव वॉज अ ग्रेट प्लेयर, सीनियर नहीं खेल पाया, ठीक है, बट जो कठिनाइयों से वो निकला था, हम शायद उससे एक सीख ले लें. आई थिंक दैट विल बी a fantastic lesson that can come out of this huge tragedy. I mean, for me, to lose a player, not only a player, but to lose a human being like Rajiv, and believe me, I have interacted with him quite a bit, and that man was a clean soul. He was somebody who only wanted to be a top ranked player. That's all. The rest of the things didn't matter to him.
And I think that is one big reason that he couldn't spread himself out. That is one reason why we saw what happened. Otherwise, this would not have happened to him. राजेश चौहान जी, इस शो के अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा कि राजीव मिश्रा को आप कैसे याद करना चाहेंगे? सबसे पहले तो उसका जब भी 97 का जब भी जूनियर वर्ल्ड कप याद आता है या उससे पहले यूरोप टूर याद आता है, तो मन में ऐसा होता है कि ऐसे ही प्लेयर भारत में पैदा होते रहें और ऐसा सीधा सादा लड़का जो सिर्फ खेलता था, कम बोलता था, और जैसा संदीप भाई ने बताया कि इतना साफ सुथरा था और वो टॉप पे जाना चाहता था। तो सब प्लेयर्स की यही भावना होनी चाहिए कि हम भी अपने देश को, अपने खेल को टॉप पे लेके जाएंगे। और मैं भी सभी से उम्मीद करूंगा कि उनके जैसा फिर ऐसा प्लेयर बने, और जैसा वो बनना चाहते थे सब अपने दिमाग में, दिल में ये रखें कि वो भी कुछ ऐसा करें जिससे भारत दोबारा से हॉकी में या किसी भी खेल में टॉप पे जाए। दिलीप भाई, आप राजीव मिश्रा को कैसे याद रखेंगे? राजेश मिश्रा हमेशा एक स्टार के रूप में हमारे बीच हैं। एक जूनियर लेवल में वर्ल्ड हॉकी में उन्होंने अपना पहचान बना चुके हैं। मेरे ख्याल से हम कोई नहीं भूलेगा जो उस एरा में जो हॉकी के समझते हैं, जो उस एरा में हॉकी देखे, उनका गेम देखे, कोई नहीं भूलेंगे मेरे ख्याल से। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संदीप जी को कि उनका एक बहुत अच्छा मेमोरी आप कैप्चर करके रखे हुए हैं। मैं भी देख नहीं पाया था, और हमारे हॉकी इंडिया की तरफ कोशिश रहेगा कि उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो शॉर्ट टाइम के लिए, और जिस लेवल का, जिस क्वालिटी का खिलाड़ी रहा है, कि हमारे यूथ उनके बारे में जाने। Sandeep, your closing comments on Rajiv Mishra on this show. How would you remember him? No, I only remember him from the 97 World Cup, and you know, that interview was a very different aspect. But for me, the memories are of him scoring those goals against Australia, against Cuba, and that match winner against Germany. I mean, Rajesh has hundreds of stories of that Junior World Cup. मतलब पिटारा खोल लेगा राजेश चौहान आज अगर, तो वो इतनी कहानियां निकाल लेगा वहां से कि वो सेमीफाइनल में क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिलीप तो ही वाज अ ग्रेट प्लेयर इवन ड्यूरिंग दैट फेज। ये आई थिंक अटलांटा ओलंपिक्स के बाद ये जूनियर वर्ल्ड कप दिलीप के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। वाइस कैप्टन बलजीत सिंह सैनी वाज कैप्टन देयर, राजेश चौहान सेंट्रल मिडफील्डर। तो मुझे याद है कि पहले थोड़े बहुत मैचेस में फॉरवर्ड लाइन में भी राजेश काफी घुस जाते थे राजीव मिश्रा के साथ। लेकिन राजीव का जो वो जो पैशन था, जो कि स्ट्राइकिंग सर्कल में था, वो बहुत कम प्लेयर्स में आपको दिखता है कि मुझे आई नीड द गोल्स, मुझे गोल चाहिए, मुझे वो बॉल फीड चाहिए। तो फॉर मी 97 जूनियर वर्ल्ड कप विल ऑलवेज बी दिस मैसिव थिंग जस्ट बिकॉज ऑफ वन मैन। ऑफ कोर्स इट्स अ टीम गेम, बट एक प्लेयर हर वक्त निकलता है इतना बड़ा। तो for me, that will be the biggest and the best memory that I can always have of Rajiv. We'll leave it at that. I thank my guests, Dileep Tirkey, Rajesh Chauhan, and Sandeep Mishra. And before we conclude, let's listen into Rajiv Mishra, possibly to remember him best. एक ही टारगेट है मेरा, वो है मोस्ट डेंजरस फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड। आपने बनना, बस यही एक बनना है।